stage is now all set. To lead this highly relevant discussion, I'm honored to invite the session moderator, Dr. Meenal Thakral, Classified Specialist, Geriatric Medicine, Artemis Hospital, Gurugram. Can we all please welcome Dr. Meenal on stage? A very warm welcome to you. I urge you to moderate the session and give me a minute as I invite the key speakers. Joining her on this distinguished panel, we have Padma Shri, Professor Dr. J.M. Hans, Director and HOD ENT, Fortis Hospital, and Director Dr. Hans Center for ENT Hearing Care and Vertigo, New Delhi. Can we have a more energetic round of applause? A very warm welcome. You please take your seats. We also have with us Padma Shri, Professor Dr. Subhash C. Manchanda, Cardiologist, Sir Gangaram Hospital, New Delhi. A very warm welcome to you, sir. We also have with us Dr. Ajay Gupta, Associate Professor and HOD, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. Once again, a very warm and hearty welcome to all our distinguished panelists on stage. And I now hand over the session to Dr. Thakral for further proceedings. Good afternoon, everybody. I'm very delighted to have you all for this session today. We are having a session on chronic diseases in elderlies. And since the population of elderlies are growing, it's a growing population, and so are the prevalence of the chronic diseases like arthritis, dementia, and hearing loss, diabetes, hypertension. All these prevalences are also increasing. So today's discussion will be focused on the unique challenges that the elderlies face, then what all are faced by their families, their caregivers, their emotional well-being, their physical well-being, their mental well-being, and what all we can do to support them to intervene in this thing earlier as preventive care. For this discussion, we have such eminent guests with us, and Dr. Hans sir, Dr. Manchanda sir, Dr. Ajay sir, and we'll have their insightful experiences on this specific topic. So we'll start with you, Dr. Sir, Hans sir. So hearing loss is a very prevalent issue in elderly, and often it is slightly overlooked. And elderlies are sometimes also reluctant towards it in the terms of diagnosis as well as intervention. So what is your point of view on the fact that what are the key factors that cause this to happen in elderly? Like as we age, this starts happening more. So what are the factors that cause hearing loss in elderly? Thank you very much. First of all, I would like to thank Aniv Rajput ji, SOCHM, for arranging a lovely program. Believe you me, this kind of a thing is much better than what we do in the other conferences where we talk things which are beyond us actually. ये चीज़ अगर हर इंसान में जाती है तो I think Anil ji has really achieved something really great. दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि पिछले पैनल ने हिंदी इंक्लूड करी और मैं भी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं दिल तक पहुँचना चाहता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है, दिमाग तो वैसे भी सब गड़बड़ हो गया। मैं PGI चंडीगढ़ से जब आया तो मैं कैंसर सर्जन था 20 साल। हैट्स ऑफ टू दोज पीपल हु आर कैंसर सर्जन्स बिकॉज बहुत मुश्किल है मेंटली भी उसको सस्टेन करना फॉर years to come, decades to come। तो पिछले 25 साल से मैं इनर ईयर स्पेशलिस्ट हो गया जिसको कहते हैं हियरिंग लॉस एंड वर्टिगो। एंड आप मानेंगे कि अनफॉर्चुनेटली हम रिडिक्यूल करते हैं जो कि डेफ होता है और पिटी करते हैं जो ब्लाइंड होता है। बट मैं आपको बता सकता हूँ कि जो लोग डेफ होते हैं उनको भी पिटी करना बहुत ज़रूरी है और कभी कभी वो खुद भी इस बात में सांझे होते हैं कि वो अपनी डेफनेस को लाइटली लेते हैं। तो बहुत ज़रूरी है इन दोनों बातों के बारे में बताना कि आप सरप्राइज्ड होंगे
85% of the vertigo in a human being is because of ENT problems. And unfortunately, I've seen neurologists and general physicians and everybody giving vestibulosedatives. एक ड्रग है सिनरजीन. मेरे पास मरीज़ ऐसे आते हैं 8 महीने 9 महीने से चक्कर आ रहे हैं और वो उनको सिनरजीन, स्टेमेटिल, डिलीगान, तरह तरह की मेडिसिन का कॉकटेल दे दे के. और मैं बहुत बार ये कहता हूँ कि अगर कोई डिप्रेशन में है और उस शाम को आप उसको शराब पिला देंगे, अगले दिन वो और डिप्रेशन में चला जाएगा. तो बहुत ज़रूरी है कि आप डायग्नोज करें कि ये क्या प्रॉब्लम है और उस चीज़ को ट्रीट करें. और आप हैरान होंगे कि कभी कभी एक चीज़ से दूसरी चीज़ और दूसरी से तीसरी चीज़ आती है. मैं एग्जांपल देता हूँ, जब मैं अपने क्लिनिक में रहता हूँ कि एक हवाई जहाज़ है, उसका इंजन ख़राब हो गया, तो पायलट ने एक इंजन से अपना हवाई जहाज़ चला रहा है विद दी अदर sense organs trying to help the brain, the eyes and the other parts of the body, the musculoskeletal system, etc. But अब क्या हुआ, वो जब एक इंजन से चला रहा था तो तूफान आ गया और तूफान से भी उसने निकाल लिया और उसके बाद उसको एक और डिजीज़ हो गई. तो ऐसे काफ़ी डिजीज़ेज़ हैं कान की. मैं मानता हूँ कि बहुत ज़रूरी है जो लाइफ थ्रेटनिंग डिज़ॉर्डर्स हैं, जैसे ब्रेन स्ट्रोक हुआ, हार्ट की प्रॉब्लम्स हुई, उनको हमें डिफ्रेंशिएट करना है पहले. बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, आप मानेंगे नहीं कि ये सब करने के बाद उनको एक कॉकटेल ऑफ ड्रग्स पे डाल दिया जाता है और वो लगे रहते हैं महीनों सालों उसी को लेते लेते. ENT के पास कोई आता नहीं है. और ENT के पास एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम डायग्नोज करके हम 100% आज वर्टाइगो को ट्रीट कर सकते हैं. एक साइकोलॉजिकल वर्टाइगो है जिसको हम शायद हमें फिर रेफ़र करना पड़ेगा एक साइकोलॉजिस्ट के पास, मैं नहीं कहूँगा साइकियाट्रिस्ट के पास, जो कि उससे ठीक होता है. एंड देयर आर मेनी डिसीजेस. प्लीज़ अंडरस्टैंड, जिस चीज़ को हम भूल रहे हैं, ऑटो इम्यून डिज़ॉर्डर्स. मिनियस डिजीज़ होती है कान में जो कि एलर्जीज़ और ऑटो इम्यून से होती है. और बहुत बार मैं कहता हूँ कि अगर आप टिनिटस को, जो आवाज़ें आती हैं कान में, उनको कहें कि ये इडियोपैथिक हैं. मेरे टीचर्स ने ये सिखाया कि दिस इज़ एन इडियोपैथिक एंड यू हैव टू लिव विद दिस. नेचर कोई भी काम बिना रीज़न नहीं करती है. और अगर वो आपको बता रही है टिनिटस के बारे में, द क्राई ऑफ द डीजेनरेटिंग सिस्टम इनसाइड, तो वो कोई चीज़ है जिसको आपने पकड़ना है, डायग्नोज करना है और ट्रीट करना है. एंड टिनिटस कैन बी अ वेरी अर्ली सिम्टम ऑफ व्हाट वी कॉल एन एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स और मेनियस डिजीज. बहुत अर्ली. और अगर आपने वो क्रूशियल पीरियड वेस्ट कर दिया तो टिनिटस बेशक फैंटम नॉइज तो बनेगा ही बनेगा. इट इज़ लाइक कोई ज़िंदगी का ऐसा दुख जो आप भूल नहीं पा रहे और वो ब्रेन में फॉसिलाइज हो जाता है. तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसको देखें. तो मल्टीपल डिसऑर्डर्स आप डायग्नोज तभी कर पाएंगे जब आपके पास इक्विपमेंट्स होंगे. Or you can have an endolymphatic hydrops, you can have a BPPV, which is called a benign paroxysmal positional vertigo, you can have vestibular migraine, and you can have vestibulopathies, which are iatrogenic. इतनी दवाइयाँ दे दी कि आपने जो वेस्टिबुलर सिस्टम है कान में, बैलेंसिंग सिस्टम है, उसी को दबा के रख दिया और वो ब्रेन से डिसोसिएट हो गया और वो अब काम ही नहीं कर रहा. और अगर एल्डरली में, जैसे मैं बोलता हूँ कि हेयरिंग लॉस है और वो अगर नहीं लगाते हेयरिंग एड, अगर हम चश्मा नहीं लगाएंगे तो आप समझिए कि हमारा ब्रेन का सेंटर भी वीक हो जाएगा क्योंकि वो डिसोसिएट हो जाएगा. इसी तरह से अगर आप हेयरिंग एड नहीं लगाएंगे और सोचेंगे नहीं ये एक सोशल स्टिग्मा है मुझे नहीं लगाना, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि हमारा ब्रेन, क्योंकि ब्रेन सुनता है, कान नहीं सुनता, सिर्फ कान एक जरिया है जो वहाँ पहुँचाता है. तो वहाँ की, और अब ये देखा गया है पेट स्कैन से कि अगर आप किसी को डिसयूज़ कर देंगे वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता वो काम करना बंद कर देगा. तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आप सिर्फ अपने एक सिस्टम को, और अगर आप नहीं सुनेंगे तो आप जो दूसरा ऑर्गन है इनर ईयर का, the cochlea and the vestibule. Cochlea is the hearing part and the vestibule is the balancing part. So the sound going into the ear is actually a very important media for the vestibule also to get stimulated and work the way it should. So the vestibular cochlear nerve is one nerve which is going to the brain, though at two different centers, but उनका जो, जैसे आँख देखती है, कान को ये चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है. और कई बार कहते हैं कि BPPV
एक तरह का होता है और आप उसको एप्लेज मैन्यूवर करें तो ख़त्म नहीं। BPPV 15 तरीके का होता है और 15 मैन्यूवर्स हैं उसको ठीक करने के। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैं बहुत बार देखता हूँ मल्टीपल एप्लेज कर करके उन्होंने मल्टी कैनाल BPPV बना दिया। वो अब राइट लैटरल कैनाल में भी है, पोस्टीरियर कैनाल, 3 कैनाल्स होती हैं जो 3 डायमेंशंस ऑफ स्पेस को देखती हैं, वो मल्टी कैनाल BPPV बन गया। फिर उसको ठीक करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, बहुत ज़रूरी है कि हम ये इनर ईयर जिसको हम कहते हैं, जिसमें हेयरिंग है और जिसमें वेस्टिबुलर सिस्टम है, बैलेंसिंग सिस्टम, दोनों को देखें। हम एस्पिरिन दे देते हैं जो कि इनर ईयर को ख़राब कर देता है और उसको गड़बड़ हो जाती है, और देते रहते हैं। कितनी बार हम कहते हैं कि एस्पिरिन मत लीजिए, और जैसे ही आपको टिनिटस शुरू हो, आवाज़ें शुरू हों, प्लीज़ इसको एकदम बंद कर दें, अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे कहें कि ये शुरू हो रहा है। हाँ, ये कुछ लोग ज़्यादा सेंसिटिव जेनेटिकली होते हैं या उनके और अंडरलाइंग डिजीजेस है, एलर्जीज़ हैं तो एंडोलिम्फेटिक हाई ड्रॉप्स है, तो उसको आप एस्पिरिन, अभी डॉक्टर द्विवेदी कह रहे थे कि हम टोटलिटी में नहीं देखते पेशेंट को, हम एक एक चीज़ देखते हैं, और हम तो टिनिटस का इलाज करेंगे, हम किसी और चीज़ का नहीं। तो हमें पेशेंट को टोटलिटी में देखना है, उसको क्या दूसरी दवाइयाँ मिल रही हैं वो देखना है, और फिर हमको उस पेशेंट को ट्रीट करना है। तो हो सकता है एक चीज़ जो हम ट्रीट कर रहे हैं वो शरीर में दूसरी चीज़ को खराबी ला रही है। सो वी हैव टू सी द पेशेंट एज अ टोटल पेशेंट एंड देन ट्रीट द प्रॉब्लम, the patient rather than the problem. That's very important. Hearing aids are actually very important. Please don't underestimate कि मैं hearing aids नहीं लगाऊंगा, वो आपके डिमेंशिया का कारण बनेंगे। ब्लड सर्कुलेशन का मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। मैं 40 साल से ये इनर ईयर का काम कर रहा हूँ, लेकिन कोविड के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने ये एकदम ही चेंज कर दिया सिनेरियो। There were 2 things in COVID. One was the virus per se, and the other was the stress. Now, what was the virus doing? Like any other virus, this virus had a predilection for the inner ear. जैसे mumps, measles, cytomegalovirus, rubella, HIV, जितने भी upper respiratory viruses होते हैं, इसमें कोविड भी एक था जिसका प्रीडिलेक्शन था इनर ईयर को। इसने क्या कि उसको जाके गड़बड़ करी कहीं ना कहीं। अब हमें पता नहीं, बाकी वायरसेस का हमें पता है कि एग्जैक्टली कहाँ प्रॉब्लम करी और वो क्या होगा, वेदर इट विल बी अ परमानेंट लॉस or a temporary loss or a reversible loss, we know because of the other diseases. But because of COVID, there was no autopsies done, we don't know where exactly is the problem. But जो ज़्यादा प्रॉब्लम करी वो करी स्ट्रेस ने। स्ट्रेस ने क्या किया, जो हमारे एक बैलेंस होता है मेल एंड फीमेल्स में अबाउट द प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन, हाई ईस्ट्रोजन आर अ प्रॉब्लम टू मेनी इनर ईयर डिसऑर्डर्स। तो जब ईस्ट्रोजन्स की लेवल बढ़ती है कॉन्ट्रासेप्टिव में, प्रेगनेंसी में, तो आपने देखा होगा चक्कर आने लगते हैं, बिकॉज वो अंदर की फिजियोलॉजी को ख़राब कर देता है ईस्ट्रोजन। तो जो स्ट्रेस होता है वो प्रोजेस्टेरॉन को कन्वर्ट कर देता है कॉर्टिजोन में। सो देयर इज़ अ कंपैरेटिव इंक्रीज इन द ईस्ट्रोजन, एंड दैट्स व्हाई वेरी यंग पीपल नाउ आर सफरिंग पोस्ट कोविड with hearing loss, tinnitus and vertigo, and this has to be diagnosed and treated at a very early stage, otherwise it will become a permanent disease. Thank you. Very well explained, sir. It was a very insightful explanation. We already know, like sir also said, there is an issue called polypharmacy in elderly, wherein rampant use of medications is done. One symptom, we start treating symptoms one by one and keep adding medications for it. And so rightly said how the treatment now should not be symptom driven, it should be patient centric. A patient should be seen holistically. And now the data says that 70% of people over 70 years of age will have lot of cardiovascular morbidity, and they'll have a lot of non-cardiovascular, two-thirds of them will have non-cardiovascular associated disorders along with it. So I would like to ask this question to Manchanda sir, that how do you think that treating young people with cardiovascular diseases versus elderly with cardiovascular diseases, how does the prescription change, and how does your approach change when you see an elderly versus a young adult?
Thank you very much. As you rightly said, cardiovascular disease is the commonest disease which occurs in the elderly. Actually, जैसे इन्होंने कहा कि 70 साल से ज़्यादा लोगों में 75% लोगों को कोई ना कोई हार्ट की बीमारी है, 80 साल से ऊपर लेंगे तो 90% को कोई ना कोई बीमारी है। और ये बीमारी केवल हार्ट के लिए ख़राब नहीं है, सारे सिस्टम्स के लिए ख़राब है। क्योंकि आपने पहले सेशन में सुना, आपने सुना कि एल्जाइमर्स है, जैसे किसी की मेमोरी कम हो जाती है, मेंटल डिमेंशिया हो जाता है, उसमें भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपका इन्वॉल्व है। अगर आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हेल्दी रहेगा, आपका ब्रेन भी हेल्दी रहेगा। नॉट ओनली ब्रेन, किडनी भी हेल्दी रहेगी, एंड इवन ईयर के अंदर जो माइक्रो वेसल्स हैं वो भी हेल्दी रहेंगी। तो इसलिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हेल्दी करना बहुत ज़रूरी है। मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में 40 साल काम किया, अब मैं गंगाराम में हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी रही है कि हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट कैसे किया जाए। देखिए, प्रिवेंट करने के लिए सबसे अच्छा उम्र है व्हेन यू आर यंग। आजकल छोटे लोगों में भी हो रही है, 10 साल की उम्र में ये बीमारी शुरू हो जाती है जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, और धीरे धीरे बढ़ती है, पता नहीं चलता है। तो बेस्ट इज़ टू स्टार्ट प्रिवेंशन फ्रॉम चाइल्डहुड। लेकिन एल्डरली लोगों में देखिए, ये देखा गया है कि जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, डॉक्टर हंस ने कहा कि मेडिसिन आर नॉट टॉलरेटेड। बड़े सेंसिटिव लोग हैं वो, उनको कोई ब्लड प्रेशर की दवाई दो, उनको पोस्टल हाइपरटेंशन हो जाएगा, वो गिर जाएंगे, दूसरा भी हो जाएगा। तो दे आर वेरी सेंसिटिव, दे डोंट टॉलरेट। और खासकर हम पॉलीफार्मेसी 2 या 3 ड्रग्स दें तो उससे तो और भी गड़बड़ हो जाता है। तो आई हैव बिलीव फ्रॉम वेरी बिगनिंग, मेरी 40 साल रिसर्च हुई है योगा के बारे में। थोड़ा बताना चाहूँगा कि योग से आप कैसे इस बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और एक्चुअली मैं तो कहूँगा रामबाण है, अगर किसी ने यंग रहना है, हमेशा यंग रहना है, तो उसको सिर्फ योगा करना है। योगा जब मैंने रिसर्च शुरू की तो हमारे एल्डरली लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब ये तो बड़ा मुश्किल है, हम तो इतने कॉम्प्लिकेटेड आसन नहीं कर सकते। तो मैं बताना चाहूँगा, योग कोई आसन नहीं है, ये एक जीवन शैली है जिसमें आप शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर स्वस्थ रहते हैं। शारीरिक तौर का मतलब है कि आपको अब खान पान ठीक रखना, जैसे बताया गया नेचुरल फूड का आपको खाना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना है, प्लांट बेस्ड डाइट वेजिटेरियन लेना है, और ये प्रोसेस फूड्स नहीं लेनी, ये बिल्कुल कहा गया उसके अंदर। तो ये सेम डाइट है जो हमको हेल्दी रखती है, ना केवल हार्ट डिजीज़ से बचाती है, ब्रेन डिजीज़ से बचाती है, कैंसर से और बहुत सारी और मोटापे से, डायबिटीज़ सबसे बचाती है। तो डाइट इज़ अ पार्ट ऑफ, ये फिजिकल पार्ट है। दूसरा है शारीरिक व्यायाम करना है। योग इटसेल्फ कुछ आसन हैं जिसमें आप शारीरिक व्यायाम कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सैर कर सकते हैं, दैट्स गुड इनफ। इस एल्डरली एज में भी थोड़ा बहुत भी चला जाए, ज़रूरी नहीं है कि आपको 3-4 किलोमीटर चलना है, वो बहुत फ़ायदेमंद करती है। सबने इसके बारे में बताया। तीसरी चीज़ जो शारीरिक में आती है वो है कि हमें शराब का और तंबाकू का प्रयोग नहीं करना है। जिन लोगों को लत लगी हुई है उसको भी ख़त्म करने के लिए योगा बहुत अच्छा है, डी एडिक्शन के लिए बहुत अच्छा है। तो शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहना है, ये योग में भी कहा गया है। तो आपको खान पान ठीक रखना है, शारीरिक व्यायाम करना है, तंबाकू और शराब का सेवन। दूसरा, मानसिक तौर पर स्वस्थ रहना है। अभी बहुत चर्चा हो रही थी दी माइंड बॉडी मेडिसिन, एक्चुअली इसको माइंड बॉडी मेडिसिन कहा गया। माइंड बॉडी नहीं, इसको तीसरा लेयर जो हमारी बॉडी का है कॉन्शियसनेस है, परफेक्ट बैलेंस ऑफ माइंड बॉडी एंड कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड योगा। तो ये माइंड के ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छा है। तो ये देखा गया है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मेडिटेशन जो पार्ट ऑफ योगा है ये बहुत अच्छा है। तीसरा है भावनात्मक तौर पर, अभी आपने सुना ये हमारे जो बुरे भाव हैं, ये बुरे इमोशंस हैं, एंगर, ईगो, हॉस्टिलिटी, गुस्सा आता है, काम, क्रोध, मोह, अहंकार लिखा गया। इनसे ना केवल हार्ट डिजीज़ होती है, मैंने तो देखा कि इससे हार्ट अटैक हो सकता है, आदमी की सडनली डेथ हो सकती है। आपने सुना होगा शायद, कई बार बहुत लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, उनका सडनली हार्ट रुक गया, हार्ट अटैक हो गया। यंगस्टर्स के अंदर बहुत हो रहा है ये इमोशनल जो इम्बैलेंस है। तो ये हमें इमोशनली रहना है, और पॉजिटिव इमोशंस है, दूसरे को मदद करना, हेल्पिंग अदर्स, एम्पैथी, उससे बीमारी कम होती है। इसके ऊपर बहुत डेटा है, हार्ट डिजीज़ के ऊपर और भी। और फाइनली स्पिरिचुअली हमें रहना है। स्पिरिचुअली का मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ मॉरल वैल्यूज़ की फॉलो करना है। तो अगर ये 4 स्टेप्स करेंगे, दिस इज़ रियल योगा। तो योगा को मैंने कहा है कि ये सबसे अच्छी एक जीवन शैली है, इसको अति उत्तम जीवन शैली कहा है, इसको पॉलीपिल कहा है, जिसके अंदर खान पान को ठीक रखना है, शारीरिक व्यायाम करना है, तीसरा मानसिक तनाव को कम करना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, किसी और लाइफस्टाइल में होता है, और तंबाकू और उससे रहना है। तो ये चारों चीज़ें ही सारी हार्ट डिजीज़ का कारण है, और अगर शुरू से किया जाए तो ये बीमारी को ठीक कर सकती हैं।
अब देखा गया है कि ये मानसिक तनाव को लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसको मैनेज करना बहुत ईजी है। हाँ, दूसरा ये है कि लोगों को पता है कि हमें सैर करनी है, खान पान खाना है, लेकिन वो करते नहीं हैं क्योंकि माइंड बहुत वीक है। मैं तो यही कहता हूँ हार्ट डिजीज़ जो भी है ये वीकनेस ऑफ माइंड है। अब माइंड को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जी, हमने योगा से देखा है। मैं अपने मरीज़ से पूछता हूँ कि आप सैर क्यों नहीं करते, इज़ एजुकेटेड, उसको पता है सैर कर, कहता डॉक्टर साहब उठते हैं सुबह, जाना भी चाहते हैं, शूज़ भी डालते हैं, फिर माइंड कहता है आज मत जाओ, रात को तुमने लेट सोए हो, कल आ जाना, कल सैर करना, वो कल आता नहीं है। पार्टी में जाते हैं, वो आज कहते हैं माइंड कि आज 2 रसगुल्ले खा लो, कल मत खाना, वो कल आता नहीं। तो माइंड इज़ वीक, एक्चुअली इट्स वीकनेस ऑफ द माइंड विच कॉज द डिजीज़। तो मैंने उनको कहा योग करिए। योग करने के बाद 2 महीने में कहता है मैं तो अब ठीक हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है मैं सुबह उठता हूँ तो माइंड फिर वही कहता है माइंड की आज मत करो। तो मैं कहता हूँ शट अप माइंड, नाउ हु इज़ कंट्रोलिंग? यू आर नॉट वर्किंग एज ए स्लेव, ये स्लेव्स में होती है, स्लेव्स ऑफ योर माइंड। नाउ यू आर दी मास्टर ऑफ योर माइंड, यू आर लिविंग इन योर सो कॉल्ड कॉन्शियसनेस, जिसको हम आत्मा कहते हैं, या द थर्ड लेयर। तो अगर थर्ड लेयर में रहेंगे तो यू विल ऑलवेज बी हैप्पी एंड ऑल दैट थिंग एंड स्ट्रेस विल नेवर। सो कंप्लायंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने अपनी रिसर्च स्टडीज में दिखाया लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, 20% लोग सिर्फ दवाइयाँ लेते हैं, दूसरी दवाइयाँ भी बहुत कम लेते हैं क्योंकि उनको निगेशन है, सॉर्ट ऑफ दे डोंट लाइक टू टेक इट प्रॉपरली। हमने देखा योगा के साथ दे थिंक पॉजिटिवली, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और इससे पॉजिटिविटी होती है। और इसके ऊपर बहुत डेटा है, हाइपरटेंशन में इतना ज़्यादा डेटा है कि सारी इंटरनेशनल सोसाइटीज़, पहले हम कहते हैं इंडिया में, अब यूरोपियन है, अमेरिकन है, सब गाइडलाइंस कहती हैं कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए योगा मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हार्ट डिजीज़ की प्रिवेंशन के अंदर इसके आ गया। तो हार्ट डिजीज़ 4 तरह की होती है, मैं बताना चाहूँगा, इसका दूसरे सिस्टम से भी रिलेटेड है। एक तो हाई ब्लड प्रेशर आपने सुना, स्ट्रोक का सबसे बड़ा, स्ट्रोक के बारे में सुन रहे थे, मुख्य कारण यही है। और हाई ब्लड प्रेशर से ना केवल स्ट्रोक हो जाता है, इससे हार्ट फेलियर हो सकता है, इससे आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं और इससे अल्जाइमर भी जल्दी हो सकती है, जो ब्रेन की प्रॉब्लम है। दूसरा कॉर्नरी हार्ट डिजीज, जिसे हार्ट अटैक वगैरह होते हैं, आजकल यंग एज में भी हो रहे हैं, तो ये एल्डरली में बहुत कॉमन होते हैं। और इसके लिए भी अगर हम रिसर्च हमने करके दिखाया कि जो इसके फैक्टर्स हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन जैसे डायबिटीज़ है, मानसिक तनाव है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, वो सब योगा से ठीक हो सकता है। तो ये हार्ट डिजीज़ भी प्रिवेंट हो सकती है। और अगर बढ़ी हुई भी है, हमने रिग्रेशन के ऊपर बहुत सारा काम किया है, तो इसको आप अरेस्ट कर सकते हैं और रिवर्स अगर अर्ली स्टेज में कर सकते हैं तो कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ को भी ठीक कर सकते हैं। इससे कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है योग करने से। तीसरी बीमारी है एट्रियल फिब्रिलेशन, इसको इर्रेगुलर पल्स कहते हैं। ये बहुत कॉमन है एल्डरली लोगों के अंदर। इसको प्रिवेंट करने के लिए अगेन योगा बहुत अच्छा है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं इसके ऊपर। और अगर एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाती है तो स्ट्रोक का सबसे मुख्य कारण एल्डरली में यही है कि आपका इर्रेगुलर हार्ट हुआ, क्लॉट ब्रेन के अंदर चला गया, और इससे बिल्कुल जो अल्जाइमर्स डिजीज़ है, मेंटल डिमेंशिया में इसी से हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका हार्ट या वेस्कुलर एज ठीक है तो आप लंबी आयु रह सकते हैं, आपके सारे ऑर्गन्स ठीक रहेंगे, और अगर सारे ऑर्गन्स ठीक रहेंगे आप ठीक रहेंगे। और योगा एक होलिस्टिक मेथड है, इट गोज़ टू द रूट ऑफ द डिजीज़, रूट ऑफ द, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा हमें होलिस्टिक करना चाहिए। हम सिर्फ एक सिस्टम को देख रहे हैं, लेकिन हार्ट डिजीज़ का कारण क्या है, उसका रूट कॉज माइंड के अंदर है। क्योंकि जैसे ही माइंड बॉडी कनेक्शन है, माइंड के अंदर कोई भी स्ट्रेस होता है उससे सारे हमारे न्यूरो हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, सारी बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जो हमें डैमेज कर सकते हैं, इवन डायबिटीज़ कर सकते हैं, हार्ट फेलियर कर सकते हैं, इवन हार्ट अटैक और डेथ तक कॉज कर सकते हैं। दूसरी तरफ से हमारा न्यूरल सिस्टम भी एबनॉर्मल हो जाता है, और योगा करने से ये सब रिवर्स हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर किसी को स्वस्थ रहना है तो योगा करें, किसी भी एज में किया जा सकता है। आइडियली बचपन से शुरू करना चाहिए। अब काफ़ी स्कूलों के अंदर भी ये शुरू हो गया है। होपफुली अगर ये होगा तो ये देखा गया कि स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। हम ट्यूशन्स रखते हैं, काफ़ी स्टडीज़ हैं इसके ऊपर कि उनकी परफॉर्मेंस बिकॉज दे एट वन, सेकेंडली दे ऑल्सो बिहेव बेटर एंड दे प्रिवेंट द डिजीज़। अर्ली यंग एज में अगर करेंगे तो और भी अच्छा है, और अगर डिजीज़ अर्ली स्टेज में रिवर्स हो सकती है, एडवांस स्टेज में भी इसका बहुत फ़ायदा है। क्योंकि अगर किसी को हार्ट डिजीज़ हो जाए या हार्ट फेलियर हो जाए, उसके अंदर माइंड के अंदर इतना स्ट्रेस है, 30% ऑफ पीपल हैव एंग्जाइटी विच कैन इंक्रीज द मॉर्टेलिटी। तो उसमें क्या है कि योग के द्वारा, तो योग का यूनिवर्सल यूज़ है, और मैंने इसको अपनी प्रैक्टिस में पिछले 50 साल से यूज़ किया है। और मैं भी खुद भी
Now I am the only senior citizen. I think senior was 85 years. I am doing yoga myself, and of course, all my patients, I advise them to do yoga, and I have seen, and there is a lot of literature now, कि इसके साथ आदमी स्वस्थ रह सकता है. तो बेस्ट, जैसे आपने पूछा कि अर्ली स्टेज में डिजीज़ का डिटेक्शन तो पहले तो पता होना चाहिए. मैंने एक सजेस्ट किया था लॉन्ग बैक, जैसे ही कोई आदमी रिटायर होता है, क्योंकि योगा एकदम नहीं किया जा सकता, हम कहते हैं 1 साल पहले आप अपना एक योगा लर्न कर लीजिए, ताकि लेटर ऑन इन योर लाइफ व्हेन यू आर अलोन यू शुड बी एबल टू प्रिवेंट इट. सेकेंडली, यू शुड ऑल्सो गेट योर हेल्थ चेकअप डन. और मैं कहना चाहूँगा सीनियर सिटीजन का एक कार्ड बनना चाहिए, हेल्थ कार्ड, जिसके अंदर उनका एड्रेस तो होता ही है, उसमें बी के अंदर ब्लड ग्रुप होना चाहिए, फिर सी के अंदर कार्डिक, उनका ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए, डायबिटीज़ पता होना चाहिए, डेंचर्स का पता होना चाहिए, अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, अगर ये चीज़ें पता हो. लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको ब्लड प्रेशर है, साइलेंट डिजीज़ है. 50% लोगों को कोई सिम्टम नहीं होते इसके बिल्कुल. इसी तरह डायबिटीज़ का नहीं पता. तो इसलिए एक चेकअप करना ज़रूरी है. दैट विल बी गुड फॉर अर्ली डिटेक्शन, एंड इफ अर्ली डिटेक्शन कैन बी डन, देन विदाउट मेडिसिन इट कैन बी ट्रीटेड. So that was very enlightening. Now we clearly know that how much physical activity we require as elderlies or as senior citizens. How is it so much important? And let's now ask Dr. Ajay regarding this. We know that all the elderlies are very heterogeneous in nature. So they'll not come you with just ONE. They'll have hundreds of other things in their prescription. So how do you manage to tailor their needs and tailor the approach to physical rehab for all of them, like frail elderlies, non-frail elderlies, some with a lot of pain? So how do you balance the pain management and the physical rehab part for it? Thank you, Dr. Meenal. सबसे पहले तो राजपूत साहब का और एसोचैम का धन्यवाद इस प्रकार का एक मंच तैयार करने के लिए. और मैं बहुत समय से जुड़ा हूँ संदीप जी और चंद्र प्रकाश जी. ये तो आई थिंक इस प्लेटफॉर्म लाइक दिस इज़ वेरी एसेंशियल टू ब्रिंग अस इन टैंडम विद व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्थ. और बहुत ही ज़रूरी है ये समझना कि हम बात कर रहे हैं इलनेस टू वेलनेस की. तो हम अगर इसके ऊपर फोकस रखते हुए, मीनल मैडम ने मुझसे कुछ पॉइंट्स पे ध्यान रखने के लिए कहा है, तो मैं आई वुड लाइक टू ऐड हेयर कि एक कोई भी हम में से इंसान जब भी किसी प्रॉब्लम में है तो अक्सर हम इंसान को भूल के प्रॉब्लम को देख रहे हैं. हम ये देख रहे हैं कि वो चल नहीं पा रहा और उसके लिए हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये भूल जा रहे हैं कि वो चल क्यों नहीं पा रहा. ही मे बी हैविंग सो मेनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स विच आर रिजल्टिंग इन दैट मोबिलिटी इशू. Just to run you through an imaginative thought, the problem could be that he is living on the first floor and he finds it difficult to come down and come up the floor every day. Therefore, वो चल नहीं रहा हर रोज, और over the period of 1 year, he is landing up with problem. It has got nothing to do with his health. It was just because उसका social environment ऐसा था जिसने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया और वो नहीं पार्टिसिपेट कर पाया. तो अब जब आपने मुझसे कहा कि आपके पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स लोग लेके आते हैं, कोई पेन लेके आया और कैसे मैं उसको टेलर कर रहा हूँ, द वे दैट आई एम टेलरिंग इट इज आई एम लुकिंग एट द पर्सन एंड टेकिंग हिज प्रॉब्लम एज प्रॉब्लम नंबर 1, नॉट द प्रॉब्लम दैट आई कैन मैनेज एज प्रॉब्लम नंबर 1. एंड देयरफॉर आई फील कि अब ये चीज़ बड़ी बढ़ती जा रही है, एंड दैट्स द रीज़न वी आर टॉकिंग ऑफ इलनेस टू वेलनेस. बिकॉज इलनेस तो डॉक्टर्स डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन वेलनेस इंडिविजुअल डिफाइन कर रहा है. इफ आई एम अ हेल्थ यूजर, आई हैव टू डिफाइन दैट वेदर आई एम फीलिंग वेल और नॉट. इट इज़ फॉर दिस रीज़न
हमारी मॉडर्न मेडिसिन के अंदर भी वी आर कमिंग अप विद न्यूअर स्पेशलिटीज. Speciality of family medicine has come up. Speciality of geriatric medicine has come up. The whole idea of this is that every care has to be person-centric and not specifically disease-centric. आप 10 डॉक्टरों से बात करेंगे, अभी जैसे मैं भी यहाँ पर बैठा था 2 सेशन से, और मैं याद करता हूँ वो टाइम जब हम मेडिसिन पढ़ रहे थे तो क्या होता था, जो बीमारी हम पढ़ते थे हमें लगता था मुझे भी वही हो गई है. तो अगर आप यहाँ से 10 डॉक्टरों की बात सुन के जाएंगे तो हो सकता है आपको ये सबको लगने लगे कि आज तो हम सिर्फ बीमार हैं और कुछ नहीं होने वाला. लेकिन ये चीज़ नहीं है. और अगर हम अडॉप्ट करते हैं एक ऐसे अपने जनरल फिजिशियन को एज अ और अ फैमिली फिजिशियन or a overall caregiver, one, it will reduce the load on healthcare industry as such. आज की तारीख में जितने specialists हैं, they are all over busy. We are short of specialists and they don't have time to care for you. आप appointment लेके देखिए, आपको 2 महीने का appointment मिल रहा है. Because the smallest problem is running to the specialist. And it is not that the specialist is happy to see that. स्पेशलिस्ट का भी समय जो है वो आम प्रॉब्लम्स में ज़्यादा चला जाता है, और जो रियल प्रॉब्लम्स हैं जो कि वो एड्रेस कर सकता है उनके अंदर उसका कम जाता है. हम जैसे लोकोमोटर स्पेशलिटी में डील करते हैं, एंड आई स्टिल रिमेंबर यू टॉक टू एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, ही विल टेल यू कि वो 80% ऑफ द टाइम्स तो एक्स एंड पेन्स ही देख रहा है. तो एक्स एंड पेन्स इज सच अ कॉमन थिंग. It is prevalent in 70% of the population at some point of time or the other. But do I need an orthopedician to be looking at every ache and pain? Do I need a rheumatologist to be treating every situation? This I can manage if I start keeping the person as the center. Second, बहुत सारी चर्चा हुई, and I think एप्टली सभी ने उसी बात के ऊपर एम्फेसाइज किया है कि हमें अपनी जीवन शैली को सुधारना है. और जैसे मनचंदा सर कह रहे थे, सो वी आर ब्लेस्ड टू बी अंडर सच विद सच एमिनेंट स्पीकर्स, विद दोज हु हैव पद्म श्री. आई हैव वर्कड विद डॉक्टर हंस, डॉक्टर वाली हियर, एंड सी, योगा इज अ लाइफस्टाइल, एंड योगा इज नॉट जस्ट एक्सरसाइज. योगा इज मेनी थिंग्स. I had the opportunity to listen to the podcast of Narendra Modi ji, which happened last week, which was in a lot of talk Mr. Friedman के साथ. There he was describing कि वो अपना lifestyle कैसे lead करते हैं और कैसे वो योगा करते हैं, how he will manage what he wants to eat. There are days that he will have only 1 meal in a day for 3 months of at a stretch without feeling hungry. So that is the power of yoga, where what you want to do and what your body is doing is both going on the same parallel track to achieve the same goal that we are wanting to work towards. So starting from there, the most common form of yoga जो हम समझ रहे हैं और जो हम देख रहे हैं is the exercise form. जैसे सर कह रहे थे कि भाई ऐसा आसन करना है, ये आसन करना है. I think that is also fantastic. अगर हम उसको सिंपली समझ पाएं, वो भी कर पाएं, we are not losing anything. उसके अंदर भी उस आसन को करने के लिए ना ही केवल मेरे को अपने शरीर को मोड़ना है, बट मेरे को अपनी सोच को भी एकाग्र करने की ज़रूरत है वो आसन करने के लिए. वो अगर मैं यंग एज में कर पाता हूँ तो मैं बहुत सारी लोकोमोटर प्रॉब्लम्स को एट द लॉन्गर एज सॉल्व कर सकता हूँ. एंड एज वॉज बीइंग सेड, आप 65 साल के हो गए, आप रिटायर हो गए, आप आज सोचिए कि आज मैं योगा करना शुरू कर दूं. ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप उतना ही करेंगे जितना कि आप 20 साल पहले कर सकते थे. तो सेट योर टारगेट्स एट द लेवल दैट यू कैन अचीव. आप 15 मिनट सैर कर सकते हैं, आप 15 मिनट करिए, आपको 15 मिनट का बेनिफिट मिलेगा. ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छा मैं आधे घंटे तो चल नहीं सकता तो मेरे को चलने की ज़रूरत नहीं है. मैं अगर आधा घंटा किताब पढ़ नहीं सकता तो मुझे किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आई हैव टू
I have to challenge my cognitive abilities, I have to challenge my physical abilities to whatever point that I can take. हम जब rehabilitation करते हैं, हम उन cognitive abilities को use करते हैं, जैसे कि पिछले session में डॉक्टर धमीजा भी बात कर रहे थे कि there is a cognitive reserve that is there. किसी जने को stroke हो गया और उसको एक साइड का लकवा हो गया, वो नहीं चल रहा, उसको हम रीट्रेन करते हैं. हम रीट्रेन क्या कर रहे हैं? हम ये यूज़ कर रहे हैं कि उसके ब्रेन के अंदर कौन सी पावर बची है जिसको कि हम यूज़ करके उसकी बॉडीज़ को या तो मूव करा सकें या फिर जो वो एक्शन करना चाहता है उस एक्शन को हम ऑल्टरनेट तरीके से करा सकें. ये सब लोग कर सकते हैं, लेकिन कई बार वो ना सोच की वजह से हम वहाँ पर रुक जाते हैं. एंड दैट इज़ वेयर द रोल ऑफ हेल्थ केयर इज़. मेरी नज़र में द आइडियल रोल ऑफ हेल्थ केयर इज़ टू प्रोवाइड सपोर्ट to the individual in the goals that the individual is wanting to achieve and not necessarily providing the treatment for which I am competent and trained to provide. So I think अगर हम ये सोचें और इस नज़र से पूरे हेल्थ केयर सिनारियो को हम बात करें और अपने पूरे लाइफस्टाइल की बात करें, then many things can be achieved. It can be a big turnover factor even in our economic impact, as we were saying, because आजकल ना हम हेल्थ इम्पैक्ट को मेजर करते हैं डेलीज में, डिसेबली एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, विच मीन्स नॉट जस्ट कि मैं जिंदा हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं कितना काम कर पा रहा हूँ और मेरे कितने जीवन के साल नाकामी में गुजर गए. तो दैट इज द लेवल दैट वी आर ट्राइंग टू मेजर इट. वी हैव टू नॉट जस्ट be fit, but we have to be healthy to be able to deliver, to be able to work, and that is the objective that we have to achieve. And Delhi's have an economic impact. The economic impact is not only for the individual who has suffered the illness. मेरे को बीमारी हो गई, मेरा तो इकोनॉमिक लॉस हो ही गया, लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो अपने घर के अंदर किसी न किसी बीमार आदमी की केयर कर रहे हैं? अब उनको आज अगर अपने काम के लिए यह ऑर्डर आए कि साहब आपको पूना जाना है, एक बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, आप कहेंगे नहीं साहब मैं पूना नहीं जा सकता बिकॉज आई हैव टू टेक केयर ऑफ समबडी एट होम हु इज डिपेंडेंट ऑन मी. दैट्स एन इकोनॉमिक लॉस टू यू एंड इकोनॉमिक लॉस टू द नेशन. सो therefore we must focus at rehabilitation and try to make the people more and more self dependent, or so to say self independent, with various aids, appliances, technology, exercises, whatever is available to us nowadays. और आजकल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आती जा रही है. टेलीमेडिसिन टेक्नोलॉजीज आर देयर, वी कैन टेक केयर ऑफ पीपल फ्रॉम डिस्टेंस, आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, एंड दे आर चीप. क्वेश्चन इज आर वी यूजिंग देम और नॉट. Very well said, sir. It's really great to hear all these experiences and insights and everybody focusing on patient-centric care. It gives a lot of pleasure to me as a geriatrician. Since we're talking a lot about prevention and we're talking about the cognitive reserve, the Lancet Commission in 2020 connected hearing loss with dementia. And in 2023, it said if you treat hearing loss, you can actually prevent or reverse dementia, which is a great breakthrough that we have. So on this line, sir, can you give us some crisp connection between the two, and how can we intervene early or prevent so that we can delay the cognitive impairment or reverse the cognitive impairment to say? I think hearing loss के बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ है. Evolution में कहीं पर भी hair cells, actually hair cells are the components of the inner ear which convert the sound wave into bioelectrical current, जो फिर nerve से brain में जाता है जहाँ decoding होती है और हम सुनते हैं. So once you lose these hair cells by ototoxicity, by noise, by genetic, autoimmune disorders, whatever, they will never be able to regenerate. तो आप समझिए कि हमें इनको प्रिवेंट करना है कि ये ख़त्म नहीं हो. दिस इज़ वन थिंग. सो दैट मीन्स इफ़ यू आर लूजिंग, आप ब्रेन के में सिर्फ 15 या 18 या 20%
ही ब्रेन यूज़ होता है और उसमें बहुत कैपेसिटी है कि अगर कोई चोट भी लग जाए तो हम अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को फंक्शन में लाके पूरा कर सकते हैं. बट हेयर सेल्स चले गए तो चले गए. बट द आइसिंग ऑन द केक इज डेफनेस नो मोर अ डिसेबिलिटी. किसी भी तरह का डेफनेस अगर होगा तो हम उसको आज ठीक कर सकते हैं. वो बेशक सर्जरी से करें, हेयरिंग एड से करें या कॉक्लियर इम्प्लांट से करें. आई स्टार्टेड द ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट्स इन दिस कंट्री इन चिल्ड्रन. तो अगर 1 साल का बच्चा पैदा ही हुआ है जिसका कॉक्लिया ही नहीं है तो उसमें भी हम ये ऑपरेशन करके ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट का उसको सुना सकते हैं. तो कोई भी दुनिया में मरने दम तक बहरा नहीं रहेगा, ये हमारी गारंटी है. थैंक यू. Thank you, sir. So it was a very delightful session. Concluding it with the fact that how sir mentioned and how Dr. Hans also mentioned regarding the assistive devices. Now the technology is expanding a lot and we have talked about telemedicine working in it. I would like to have a single liner contribution from everybody that how the wearable devices, how the telecommunication is impacting the cardiovascular health, how we are using these assistive devices, be it wheelchairs, canes, which are all now very innovative and helps the elderly to maintain their independent state and improve their quality of life. And how sir has already explained that how the hearing aids and the assistive devices are so innovative that nobody will have hearing impairment till the end of their life. So please, can you start? Well, there are many wearable devices available in cardiology, cardiovascular system. And the most important is this Apple Watch or any watch, smart watch, which has almost all the parameters it can tell you. It can tell you the amount of exercise. I'm wearing it for the last 10 years, and I can see the exercise I'm doing. If I'm not completing, it can tell you the exact calories you have burnt, how much you have started, how much you are asleep, what is the quality of sleep, and the modern ones can tell your blood sugar, blood pressure, everything can be done. So I think these gadgets are of great help. Secondly, they are of great help in a patient who has a high blood pressure and all. A reminder goes to him and to send the blood pressure to us. Early patients, difficult to come with this traffic, etc. So I think this telemedicine has helped quite a lot in maintenance of COVID was a blessing in that way because many patients started taking blood pressure at home. Earlier they were not taking it. So that's a very good gadget also. Similarly, blood sugar, etc. These are small gadgets, but there's a 24-hour available now gadgets to record the blood sugar, the blood pressure, and the Holter, etc. For several days we can record it. So these gadgets have helped us quite a lot. But I think the best for the prevention is if you can afford any smartwatch, and this can give you a lot of parameters. At least it can tell you that you are doing regular exercise and what is your cardiac status all the time. Dr. Rajesh sir, please, can you? हम सिर्फ बात कर रहे थे assistive devices की. I think that's what. So as a closing line on that, I will just try to say a very simple thing. We see a lot of patients people who will come to us who will require a simple thing like a cane to be able to help them walk and to prevent a fall. वो गिर जाएंगे तो हिप फ्रैक्चर हो जाएगा, हिप फ्रैक्चर हो जाएगा तो 1 साल के अंदर मोर्टेलिटी प्रोबेबिलिटी 50% है. तो वो तो चलो मैथमेटिकल एंड डेटा चीज़ें हैं और इट्स फॉर डॉक्टर्स. अवे फ्रॉम दैट आई फाइंड पीपल विल नॉट यूज़ अ केन, क्योंकि जैसे ही वो केन यूज़ करेंगे उनको लगता है कि नहीं, लोग हमें बूढ़ा समझ रहे हैं एंड वी आर नॉट गेटिंग द रिस्पेक्ट. सो with all due respect to all the elderly, the senior citizen population, I think we must learn to age with grace than not age or just stay young. We must learn to have the gray hair, accept them and use them and flaunt them. So if I have gray hair, if I am bald, I must be able to flaunt my baldness and not run around कि भाई मेरे को तो hair transplant कराना है and I want to look young. That's the day that my people will be able to use a cane, use a walker, prevent a fall. And from
And this I just want to end with one personal experience. My grandfather, he's no more now though, but he used to walk with the stick in his hand, held tight and in a horizontal panel fashion, just as a stick. He used to walk and go for a 1 hour morning walk every day. Eventually he aged, and as you were growing older, he aged. All that happened was the stick from being horizontal turned to vertical. And he still carried the same stick for 30 years, and he used the same cane with the same grace. So if I do not consider the wearable device or the hearing aid as a sign of aging and as a sign of becoming old, I will accept it. So that social stigma and has to go away, and acceptability has to improve, and we must respect the people who are using it. That, I think, is the way that we can get it going. Amazing, sir, amazing. That is a beautiful note to end this talk on, that we have to age gracefully. Along with healthy aging, there should be graceful aging, and there should be no social stigma attached to it. I, as a geriatrician, really loved being here. I'm honored to share this chair with such extremely talented and experienced panel. And thank you, Asocham, for giving me this opportunity. Thank you. A round of applause for the esteemed panel. I once again request Mr. Rajput to please join us on stage and present a token of respect to our eminent speakers. We'll start with a session chair. 3 chairs for Anil Rajput. Dr. Meenal Thakral, session chair, classified specialist, geriatric medicine, Artemis Hospital, Gurgaon. Padma Shri Professor Dr. J.M. Hans, Director in HOD ENT, Fortis Hospital, and Director Dr. Hans Center for ENT Hearing Care in Vertigo, New Delhi. Padma Shri Professor Dr. Subhash C. Manchanda, Cardiologist, Sir Gangaram Hospital, New Delhi. Dr. Ajay Gupta, Associate Professor in HOD, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, requesting our esteemed speakers to please come forward and come together for a group photograph. Thank you very much. Ladies and gentlemen, now we'll take a 30 minutes lunch break. Lunch is organized in Desire Hall, and I'll quickly explain you the directions to Desire. So once you exit from this hall, you have to take a left, then one more left, and you'll find Desire Hall on your right. I repeat, once you exit this hall, you have to take a left, then one more left. As you walk along, you'll find Desire Hall on your right. So we request you to kindly reassemble in this hall at sharp 2:45 p.m. for our next session. Thank you.